عورت جب بالغ ہو جائے. ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں سماعت کیا عورت کے 4 مرحلے بتائے گئے. ایک یہ کہ عورت کا بچپن، اور یہ پورا ہو گیا تھا نا، یہ پورا یہاں تک. بچپن والا پورا پڑھایا تھا. اچھا تب ٹھیک ہے. چلیے جب عورت بالغ ہو گئی، اے بیٹا دروازہ بند کر دو تو بیٹھے آپ پڑھیں. جب عورت بالغ ہو گئی تو اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی پابندی ہو گئی ہے نا. جیسے بالغ چاہے مرد ہو یا عورت، جو شریعت کے جو قوانین ہیں وہ جو لاگو ہوتے ہیں کس پر؟ بالغ پر. عاقل بالغ، بالغ مطلب بالغ ہو جائے، اور عاقل مطلب کہ عقل والا، جو بھی اس کی پہچان ہے بالغ ہونے. اب اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تمام مسائل پر عمل کرنا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. جب سے بالغ ہو گئے مرد ہو یا عورت، ان پر یہ تمام چیزیں اب فرض کر دیا گیا ہے نا. اب کوئی نماز چھوڑے تو گنہگار، اب کوئی روزہ چھوڑے تو گنہگار، یہ تمام چیزیں. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ ذمہ دار ہو گئی. اب اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرضوں کو ادا کرے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہے. اور یہ بھی اس پر ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم اور خدمت بجا لائے. سب سے اصل تو یہی ہے نا کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں، بڑوں کی تعظیم کریں، ان کی خدمت کر لیں، اور اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب سے پیار و محبت کریں. یہی 2 فنڈا ہے، یہی 2 کہ بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے ہے نا. پڑوسیوں اور رشتے ناطے کے تمام چھوٹوں بڑوں کے ساتھ ان کے مراتب و درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کریں. اسلام ہمیں اس بات کی درس دیتا ہے. بتائیے کتنے اچھے درس ہے نا، کہ بڑوں کی کو رسپیکٹ دی جائے، چھوٹوں کی کو رسپیکٹ دی جائے، شفقت کی جائے، اچھی اچھی عادتیں سیکھیں، تمام خراب عادتوں کو چھوڑ دیں، اور اپنی زندگی کو پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال کر سچی پکی پابند شریعت اور ایمان والی عورت بن جائیں. ہے کہ نہیں؟ نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے ہیں. اور اس کے ساتھ محنت و مشقت اور صبر و رضا کی عادت ڈالیں. یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے یہاں پر، اور اس میں شاید برا لگے کہ ماں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے بننے اور بگڑنے میں. جیسے گھر پہ ہیں، محنت و مشقت اور صبر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب اور لڑکی بچی سے کہا جائے کہ تم جاؤ کھیت میں پھاوڑا لے کر کے کھیت میں پھاوڑا چلاؤ، تو تھوڑی کہا جائے گا. نہیں، محنت و مشقت کا کیا مطلب؟ کچھ گھریلو کام میں بھی ہاتھ بٹا لے، سیکھے. وہ ایک عورت کو کچن کے جو کام ہے اس میں اس کو ہنر پیدا کرنا چاہیے، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہیے. آج بہت ایسی ہیں، کوئی شکایت نہیں، بہت ایسی عورتیں جو عمر کے آخری دہلیز پہ پہنچ گئیں، لیکن آلو جس طرح وہ بناتی تھی شروع میں ویسے آج بناتی ہیں. ایسے کر کے ابال دیا اور دے دیا، کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تب بھی کھاؤ. اور بہت ایسی عورتیں دیکھیے جو دلچسپی لیتی ہیں. آج کل تو آسان ہے، یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیے ایک سے ڈشز بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں، آلو کو ہی 10 طرح سے بنانے کا طریقہ ہے. مرغے کا گوشت لے آیا، مسالہ وسالہ پیس کے، چاہے دکان سے مل گیا لے کے ڈال دیا، پانی الگ، نمک الگ، مرچا الگ، سب الگ. کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تب بھی کھاؤ. اور ایک ہے کہ اسی کے کئی آئٹم ہیں، کئی طریقے سے مرغے نہ جانے کتنی قسمیں بنانے کا طریقہ ہے، بنا لے. اب بتائیے اچھا بنے، ظاہر سی بات ہے کھانے والا بھی خوش ہو جائے. تو ہنر کہتے ہیں کہ کچن وہ جگہ ہے جہاں سے عورت چاہے تو گھر کے گوشے گوشے پر حکومت کر سکتی ہے، کونے کونے میں ہر ایک فرد پہ حکومت کر سکتی ہے. پر کیسے؟ اچھا بنانے آئے، ڈشز کو الگ الگ طریقے سے پیش کرے، بس وہیں آ گیا تو بنا دیا. دلچسپی نہیں ہے. جتنے محنت سے ہم مہندی کے ڈیزائن دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، اسی طریقے سے ہم اگر کچن کا دیکھ لیں. بچے کہا کرتا آپ لوگ تو بڑے بھی ہو گئے کہ پہلی بار میں کوئی اچھا نہیں بناتا. پہلی بار روٹی بناؤ تو سیریا، جاپان، بھوٹان کا نقشہ ہی بنے گا.
पहली बार सब्जी बनाओ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज है कि अपना बना बिगाड़ा हुआ, अपनी बिगाड़ी हुई सब्जी भी अच्छी ही लगे। तो बस एक नियत कर लो, एक आदत है कि मुझे बिगाड़ना है, किचन अंदर से बंद करो, तमाम चीजें से बनती है उसमें थोड़ा कम कर लो, बनाओ, बिगाड़ो, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते एक दिन गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो मैदान में लड़ेंगे जंग में तो कभी गिरेंगे, उठेंगे, जख्मी होंगे, सब होगा। और तिफल मतलब छोटा बच्चा, वो बच्चा जो घुटनों के बल चलेगा वो क्या गिरेगा, वो क्या गिरेगा, वो गिरेगा वो। हाँ, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब जो घर पे पड़ी हुई हैं उनको कोई डांट डपट नहीं, कोई सख्ती नहीं, आपके पास आपको नहीं आप दरखास्त लिखना है, नहीं लिखोगे तो डांट पड़ेगी है, सलाम में आपको दुआएं याद करनी है, तो दिक्कतें हैं। लेकिन इस दिक्कत के बाद कीमत बढ़ गया। वो लोहा जो 10 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो है, लेकिन उसका सिर्फ 100 ग्राम लेकर के 50 ग्राम लेकर उसे सही से तपाया, फिर उसे पीटा, तपाया, फिर उसे पीटा, और पीट पीट के उसे एक हुनर दे दिया, एक नक्श दे दिया। फिर देखिए उसकी कीमत, हर देखने वाला अब कीमत बताओ तो कह देता है आदमी, क्यों? अब उसके अंदर हुस्न आ गया, उसके अंदर क्वालिटी आ गई। आप भी मानोगे, बाज़ घरों में मोहल्ले में कोई एक औरत होती है, ये कहते हैं यार फुला की बहू बड़ी अच्छा खाना बनाती है, फुला की बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, फुला की अम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती है। क्यों भाई, है ना? तो अच्छा चलिए हम मानते हैं कि असल खाना एक औरत को अपने मैके में बनाना है, कहाँ बनाना है? ससुराल में बनाना है। चलिए ये बात मान लेते हैं, ठीक है, ये बात हम मान ले रहे हैं। लेकिन जरा एक बात बताओ, जिस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं, फिर वो कैसे करेगा? जो चीज सीखे ही नहीं, अब हम क्रेन मिल जाए चला लेंगे ना, भाई क्रेन मिल जाए, जहाज मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, क्या दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत है भाई। जो चीज जानते ही नहीं, हमसे तो रोटी कह दोगे तो हम नहीं बना पाएंगे गोल, और हो सकता है कि आपको किए होगे तो आ रहा होगा। इसमें जो दिक्कत है ना, अब ये कह रहे हो कि जब ससुराल में जब ये काम सब करना है, बनाना करना है, तो इसमें अम्मी की कौन सी गलती है? अम्मी की ये गलती है कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी। खासकर घर में जब भाभी आ गई, अब मेरी बेटी एक काम नहीं करेगी, अब भाभी हो गई सर्वेंट, खादिमा, सारा काम, बीमार हो परेशान हो सब करना है उनको। बेटी कोई वो 9 बजे उठे और ये उठते ही उसको नाश्ता मिलना चाहिए, नहीं तो वो भी भाभी को सुनाएगी, अम्मी भी भाभी को सुनाएगी। ऐसा है कि नहीं मान? थोड़ा बहुत अच्छी बात है कि ना हो, लेकिन ये मामला तो ऐसा है कि अक्सर जो है घरों में, जिस घर में खासकर अगर बहू है तो फिर बच्चियों से कम काम लिया जाए, ये लाड प्यार, लेकिन ये स्वीट पॉइजन है, साइलेंट किलर है। आप उसे लाड प्यार में माँ उसे बिगाड़ रही है, तबाह कर रही है उसकी जिंदगी। देखिए जिस चीज की आदत पड़ी होगी फिर वो आपके लिए क्या दिक्कत है, और जिस चीज की आदत नहीं है वो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। नमाज के लिए क्यों कहा गया? चलिए नमाज के लिए कहा गया 7 साल का बच्चा हो जाए उसे नमाज के लिए कहा जाए, और ये कहा गया कि जब वो 10 साल का हो जाए तो थोड़ा सा मार के भी कहा जाए। क्यों भाई? अभी हमने पढ़ा कि नमाज रोज़ा ये तो बालिग पर है, अभी तो बालिग हुआ नहीं 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी बालिग तो हुआ नहीं, फिर क्यों? ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग, ताकि असल उम्र आने से पहले इसकी आदत पड़ गई। अफजल इबादत है ना नमाज, तो नमाज की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, और किसी की ट्रेनिंग नहीं दिलाई जा रही, इसकी दिलाई जा रही है, ताकि असल जब उस पर नमाज फर्ज हो तो फिर वो नमाज का आदी पहले से था, उसके लिए क्या दिक्कत है कि नहीं? हाँ, तो ये इसलिए कहा गया है। तो यही मामला है। अब मान लो बच्ची जो कभी खाना बनाई ही नहीं और ससुराल में वो जाए, क्या पता यहाँ रिवाज है कि नहीं, या होता है कि कुछ दिन तक वो औरत खाना नहीं बनाती है, नई दुल्हन, किसी एक दिन उसकी ओपनिंग करवाई जाती है, बर्तन टच कराना है, कुछ ऐसे बोलते हैं हमारे तरफ, है
हाँ जो भी, तो ऐसा होता है ना। तो उस दिन क्या होता है, खाना उसी से बनवाते हैं कि नहीं, उसी से बनवाते हैं। असल तरीका यही कि लेकिन अब उससे नहीं बनवाते हैं। वजह क्या है बताऊंगा मैं। असल जो पहले का तरीका वो यही कि उसी से बनवाते हैं, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम ख़ानदान में तो दावत देते ही है। ख़ानदान को दावत दिया गया, ये आइन, और पहले दिन खाना बनाए। पहले दिन बनेगा पूरी सब्जी, मीठा कुछ बनेगा, गोश्त बन जाए, मछली वगैरह। तो अब पहले ही दिन ख़ानदान में बात चली जाएगी, फुला की बीवी, फुला की बहू कितना बढ़िया खाना बनाती है। अच्छा बनाई तो, अब बुरा बनाई तो। उसी दिन अब बताओ जो कभी बनाया ही ना हो, वो उस दिन बनाएगी ना जोरदार खाना, एकदम बढ़िया बनाएगी ना। है उस दिन समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। पहले ही दिन अरे अम्मी तो सब सिखाया था कि ऐसे रहो, ऐसे रहो, ज़्यादा बर्दाश्त ना करे हो, एक बात के दो ही बात बोल दे हो। ये तो अम्मी सिखाएंगा, ये नहीं सिखाया अम्मी ने। फौरन शौक हो जाएगा, अरे तुमको बनाना है ना। लेकिन आजकल लोग समाज में इज्जत ना खराब हो इसलिए अम्मी वगैरह ही बना देती हैं, है ना। लेकिन असल जो रूल है वो यही है, वो खुद बनाए। लेकिन अब वो रह ही नहीं गया मामला, तो अब खानदान वाले बुरा ना माने तो माँ इज्जत बचा रही है, घर वाले इस बहू की इज्जत बचा रहे। मशहूर तो ये कि वो बनाई है, वो बनाती नहीं है। वो एक दिन तो बस निकलवा देते हैं बस पूड़ी वगैरह है। देखा आपने, पहले दिन गड़बड़ हो के नहीं मामला, जिस दिन जिम्मेदारी मिली हमको कोई मालूम ही नहीं है। आज नमाज हमको फर्ज हुआ, हमको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। अब चले 40 दिन सीखे ना, पहले से सीखे होते, आज से हम शुरू करते नमाज। तो अब बताइए, धीरे धीरे समझ में आएगा कि माँ का बड़ा अमल दखल है, अच्छा होने में भी और बिगड़ने में, दोनों की बात कर रहा हूं। लेकिन अब एक बात बताएं, अगर औरत बनाई है खाना पहले, अब बताए बनाएगी। अब घर में कभी खाना अच्छा बनता नहीं था, ये ले नई बहू आई, देखो बढ़िया बढ़िया बना के दे रही है, आलू कैसी ऐसी किस्में बना रही है, मुर्गे को हम तो वही समझते थे, बस आज की तरह बेहतरीन बेहतरीन बना रही है, खुश। अब जब सास ससुर खुश, वो ससुर बताएगा अरे पूछो ना, बहुत बढ़िया बहू पा गए, खाना तो लाजवाब है, इनाम भी दे देगा वो, पता है कि नहीं, इनाम देगा, मोहल्ले में कहेगा, शौहर की तारीफ हुई। अब वो भी किचन से कान लगाए होते हैं ना, तारीफ सबको अपनी अच्छी लगती है, तारीफ पसंद होना अलग चीज़ है, और तारीफ अपना अच्छा लगे ये फितरत में। अगर आपको सिर्फ चाय बनाने आता हो ना, हुनर कि आपको लग जाए कि मैं अच्छी चाय बना लेती हूँ, तो आप बहाना ढूंढोगे कि मुझे कहीं बनाने का मिल जाए। मेहमान आए बस वो मना करते रहे, अरे बन गए, हालांकि बना नहीं है, बन गया बस 2 मिनट, जानते हैं 5 मिनट में तैयार होकर निकलेगा। क्यों? हर इंसान अपने हुनर की तारीफ चाहता है। एक चाय अच्छा बनाने आ जाए तो आप चाहोगे कि हम बनाएं, लेकिन जिसने कभी बनाया ही नहीं तब तो कहाँ बना के देगा ना। कभी सुबह उठने की आदत, तो कहाँ अपने सास ससुर को टाइम पे चाय दे पाए। सास ससुर क्या चाहते हैं बताइए, एक बहू से ससुर क्या चाहता है भाई, सुबह टाइम पे चाय मिल जाए, जो उसका रूटीन है मालूम कर ले, अक्लमंद बहू एक चाय बना के दे दे, और खाना आए तो थोड़ा बेहतरीन बना के दे दे, बस फैन हो जाएगा। और क्या चाहिए? और भी जो रिश्ते हैं उस पर बात होगी, लेकिन ये बनने और बिगड़ने में बहुत अमल दखल है, इसको आप मानिए। माँ का बड़ा अमल दखल है। तो अगर वो यहाँ पर कराई होती, झाड़ू तुम ही लगाओ, बर्तन तुम ही धुलो, खाना तुम ही बनाओ, रोजाना नहीं तो गाहे बगाहे, तो इसकी आदत बनी रहती ना वहाँ पे। और बनाने अच्छा आता ना, तो पहले से आदत बनी होती तो भारी नहीं पड़ता। हम कभी काम नहीं किए, अभी हमको फावड़ा चलाने के लिए कह दिया जाए, पूरी रात हाथ में दर्द होगा। ये तो दिन भर चलाते हैं, दर्द नहीं है, क्यों? उनकी आदत बनी हुई है, हमारी आदत नहीं। तो आदत बन जाए, बड़ा इसका अमल दखल। तो पहले आदत कहाँ बनी? अब वो साल 2 साल 3 साल आदत लगेगी, वो आदत बनेगी नहीं। जैसे बिगड़ा खाना लान तान हो शुरू, बहुत ससुर का बहुत दिल किया है, बहुत मूड में है, चलो आज बकरा लेके चलते हैं, घर पे ले आया बकरा, और खाना बना के पूछो मत, पानी अलाए, शोरबा ऐसे तोड़ो तो
हमारा पीस उनके प्लेट में, उनका पीस हमारे प्लेट में छटक के जा रहा है, कभी इस प्लेट में कभी उस प्लेट में। तीखा इतना कि पूछो मत, कभी नमक है ही नहीं, कभी नमक इतना तेज। तब दोबारा लाएगा वो, और वो तारीफ ही करेगा ना, तारीफ करेगा वो, कुछ बोलेगा कि नहीं। अब कुछ बोल दिया बस मूड खराब, फौरन गए कमरा बंद, घर पे फोन अम्मी का। अम्मी कितनों लोग के कई के दे दो, लोग के कमे रहा था, ये थोड़ी बताएगी, बना नहीं था। अम्मी भी कहेगी अच्छा छोड़ दो तुम भी, वैसे मत करो तुम। ये सब बिगाड़ना है। हाँ, तो मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर ये कि ऐसा माहौल हो, और जब उस जिम्मेदारी पे हम खुद जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कैसी परवरिश और कैसी तरबियत करनी है, और रहेगा कि नहीं, फिर हम करेंगे। अपने बच्चों पर सख्ती करना, ये उनसे दुश्मनी नफरत नहीं है, उनको संवारना है। आज लापरवाही में छोड़ दोगे कल नहीं हो पाएगा। आज पेड़ के डालियों को छोड़ दोगे इधर उधर जा करके, बाद में उसे आप सही नहीं कर पाओगे, काटना पड़ेगा उसे सही करने के लिए। लेकिन शुरुआत में उसे जो चाहो कर लो। तो माँ बाप का बहुत अमल दखल है। माँ बाप को इसलिए चाहिए कि वो मेहनत, मुशक्कत और सब्र रजा की आदत डाले, सिखाएं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, कराएं। खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि मेहनत करें, और सब्र भी। माँ बाप के जो हालात हैं उसी के एतबार से अपनी ख्वाहिशों को रखें। ये नहीं कि दिक्कत है घर में परेशानी, हमको उससे मतलब नहीं, हमको शादी में चाहिए एक पीला, एक नीला, एक हरा, एक हल्दी का नया ट्रेंड चल गया शादियों में ना, वो चाहिए, अलग अलग चाहिए। ठीक है तो, लेकिन अगर नहीं है तो हालात समझ लें अपने माँ बाप, खुश हो जाए। तो फिर देखिए माँ बाप भी कहेंगे मेरी बेटी बड़ी समझदार है, मेरा बेटा बड़ा समझदार है। और ऐसा नहीं कि अब वो कमाना ही बैठ जाएगा कि बा हमारा तो औलाद कुछ मांगते नहीं, हमसे तो क्या जरूरत है इतना मेहनत और कोशिश करने की। नहीं, वो और कोशिश करेगा। क्या हुआ मेरी बेटी मुझसे नहीं मांगती है, मेरा बेटा मुझसे नहीं, मेरी तो जिम्मेदारी है कि मैं करूं। तो सिंपल तरीका, मांगने ज्यादा मांगने पर ना मिले, लानतान मिले, और ना मांगने पर मिल रहा है तो बिना मांगे जो मिल जाए तो मांगने की जरूरत क्या है। लेकिन ये किचन वाली जो बात है इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हुनर हमारे अंदर आ जाए, अच्छी अच्छी चीजें जाने के बाद ही कि हम वो चीज़ खिला देंगे सपने में नहीं देते, तो फिर इंसान ये नहीं ध्यान कि घर में 3 बहुएं हैं, वो कहे नहीं कि हम काहे करें, एक दिन हम करें, नहीं हम करें। और करने से क्या सेहत खराब हो जाएगी, अपनी इज्जत, अपनी तारीफ, अपने हुनर का मुजाहिरा, अपने हुनर में और निखार। गड़बड़ वही होता है, बनाने नहीं आ रहा है ना, तो आज बकरा आ गया तो हमारा सर दर्द कर रहा है, हमको ना बनाना पड़ जाए। चाय के लिए कह दिया तो पता है कितना बढ़िया, पिछली बार बनाया था कितनी दुआ मिली थी हमको, लान तान मिला था, तो क्यों बनाने जाएंगे। लेकिन अगर हमको हुनर हो तो हम तो खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत व मुशक्कत और सब्र रज़ा की आदत भी डालें। दुआ है अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।